सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, आवाज आ रही है। हाँ सर अपना आप कैमरा भी ऑन कर लीजिए सर, so that you are may I request all the parents, all the students to kindly put the mobile at थोड़ी है, होल्ड पे चला जाता है। parents, students, म्यूट कर दो। welcome our esteemed guests. A sports personality, a social figure, and an associate of Umang bhai, इधर very क्या warm करें? welcome. हेलो उमंग भाई मेरी आवाज आप तक आ रही है? हेलो यस हेलो मनीष भाई आ रही है ओके तो यहाँ पे का बटन ज्यादा तो हमारे लोग ज्यादा वेलकम टू उमंग personality. You are watching on your screen. Umang bhai, warm welcome. Wave your hand Umang bhai so that we can confirm. Thank you very much for joining us. उमंग भाई के अचीवमेंट ग्रेट क्रिकेट के सुपरस्टार, बैडमिंटन सेमिनार, ग्रेट स्प्रिंटर, true human being, who is very cordial, very humble, and never says are there. One group, one child, and one. फोन काट दो तो 2 घंटे बाद मिलेंगे। So let's begin the session. सबसे पहले आप सभी को नेशनल स्पोर्ट्स डे की शुभकामनाएं। मैं अब फॉर्मल वेलकम के लिए बद्री प्रसाद सर को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बद्री सर, kindly take the lead. He is our PE. The real instrument behind this is quite dynamic. Bradri sir kindly address and formally welcome. इससे हो गया वो सर। ये है वो वाले बच्चे। आवाज आ रही है आप तक? हाँ सर, अब आप एड्रेस करना शुरू करें। थैंक यू मनीष सर। जैसा आज हम नेशनल स्पोर्ट डे मनाने के लिए हमें आए कि हमारे देश के बहुत ही बड़े जिनको हम फादर ऑफ स्पोर्ट भी बोलते हैं, उनके जन्मदिन को हम स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। इसमें एकत्रित हुए हैं मैं प्रिंसिपल सर, मैं हूँ जिला कराटो and also and guide headquarter commissioner, and is also a great player of badminton, and Mr. Manish sir. सभी का और अपने विद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत आभार स्वागत करता हूँ कि आप सभी लोग अपना टाइम है वो अभी क्लासेस का एग्जाम का जो टाइम चल रहा है उसको आपने थोड़ा सा ब्रेक करके आप पार्टिसिपेट किए हैं, ज्वाइन किए हैं, इसके लिए आप सभी मैं तहे दिल स्वागत करता हूँ। इसमें सारे अच्छे चीफ गेस्ट हैं उमंग सेना स्वागत करता हूँ। मैं अपने निजी शेड्यूल में मैं केवल मनीष सर ने केवल सर को एक बार ही कॉल किया। सर इसमें आवाज नहीं आ रही सर, मेरी आवाज नहीं आ रही सर? टचेस हो गया मेरे मनीष सर, अरे मेरे इसमें मेरा हेलो आ रही है सर, आप कहिए सर, आ रही है आवाज, आ रही है।
सक्सेना सर को स्पेशली धन्यवाद वेलकम ये, क्योंकि सर ने एक बार ही केवल कॉल मनीष सर ने निकल किया कि सर सक्सेना सर आप हमारे यहाँ पर जो ध्यानचंद आपका यहाँ थैंक यू एक बार कुछ लीजिए। Okay. यस सर। And now may I request नहीं सर। Krati, मेरी आवाज आ रही है बेटा आप? Yes, sir. Okay, so I'm requesting Krati from class 10, and she has been a great honor and asset to our Vidyalaya. She is quite talented, very sincere, and astounding achievements in the form of drawing, painting, essay writing. Her favorite sport is definitely रेड वाला running, walking, and science is always there to inspire the young. At present, and Krati, begin better. Start karo. Good morning. I am Krati Trivedi of class 10 from Kendra Vidyalaya Games Hub. I will explain brief on the role of sports in our life. As a student, athletics provide much potential importance in education. Sports constitute body strong, make sure mental development, teach discipline, because brotherhood, which is much needed for us. First of all, I would like to pay my tribute to the greatest players of all time, the Wizard of Hockey, Padma Vibhushan, Major Dhyanchand, whose birthday is celebrated as Indian Sports Day. I cannot resist my temptation to say that Major Dhyanchand had a fascination for sports. He joined the army at the tender age of 16 and he continued to play hockey in Norway. He was the head of the Indian hockey team that won 3 consecutive gold medals at the Olympics. Thus, inspired by the dedication and achievements of Major Dhyanchand, I firmly believe that sports refreshes the body and mind. A strong body boosts morale in the mental state. Sports that calm us in the mind. If children grow from an early age, their minds will be full of super with freshness and vitality. Sports is the lighthouse of discipline and collective consciousness. The whole team jumps in hope of winning with all energy. It promotes brotherhood also. Thus, group discipline and brotherhood becomes the cornerstones of the nation's progress. In short, sports gives the character of the man with determination, the concentration of competition, and on the other hand, tolerance of defeat and generosity of heart. Therefore, each student must participate in games and sports. Their self-alertness, self-esteem, and self-confidence, which results in vigorous and healthy life, a life full of satisfaction and success. Use attention, please. Sports increase immunity, and with increased immunity, we can fight and save our life from corona epidemic also. Thank you. Thank you very much, Krati. Very nicely spoken सभी से indeed. निवेदन है कि अपना माइक बंद रखें। एक्सक्यूज मी, बाकी सब जो आवाज में डिस्टरबेंस आ रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण है। प्लीज सुनिए जरा, 1 मिनट। सभी लोग सुनिए, सभी लोग अपने माइक को बंद रखें। जो बोलेगा उसी का माइक चालू रहेगा। उसकी वजह से आवाज में डिस्टरबेंस हो रहा है। सभी लोग थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिए।
स्पॉट डे का चल रहा Mic at mute position, all of you. चल रहा है अभी तो। Thank you very much. और सभी बच्चे, सभी पेरेंट्स, सभी टीचर्स माइक म्यूट कर लें. Thank you very much. It should be an honorable day for all of us, a day to remember, a day. It should be majestic and memorable one for all of us. Rati has rightly pointed out that sports is the only one instrument which unites us. It brings unity amongst us because we play with lot of skills, we play with lot of positive attitude, we play with omnipotence, omniscience, and omnipresent ideas, and we also have refreshing, relieving, and revitalizing feelings that most importantly leads us to success. Thank you very much, Krati, for sparing time. Now we have with us Vipin Khata sir. Sir, आवाज आ रही है आपको? सर, मेरी आवाज आ रही है? सभी को मेरा नमस्कार। हाँ सर, आप एक मिनट पहले, एक मिनट। विपिन सर, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर। हाँ सर, Vipin Khata sir has joined us, and we have really invited him to shower his ideas, his blessings. He is a librarian with us, a person who actually works as a bridge between sports and academics. He is a true sports person, very positive minded, very तो ऋषभ को technical. उठाओ। Technologically, he is very sound. At the same time, his whole purpose has joined because of our sports in charge. He takes keen interest in all sorts of things. May I request Vipin sir to kindly address the gathering? Vipin sir. जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी को सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय, हमारे ऑनरेबल गेस्ट श्री उमंग जी, स्पोर्ट्स टीचर एंड सभी टीचर्स और प्रिय विद्यार्थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग जो है राष्ट्रीय खेलकूद दिवस मना रहे हैं, आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसमें मैं बताना चाहता हूँ, मेरे विचार रखना चाहता हूँ कि खेलना क्यों जरूरी है, इसके फायदे क्या हैं और इसमें बच्चे कैसे करियर बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, बहुत ही संक्षेप में जानकारी देना चाहता हूँ। तो खेलना क्यों जरूरी है? देखिए, पहली चीज है, खेलने से विद्वानों का कथन है कि पहला सुख निरोगी काया। तो आप स्वस्थ रहेंगे, मिलता रहेगा, आपके शरीर में तनाव नहीं होगा, स्फूर्ति आएगी, चुस्ती बनी रहेगी, ताजगी बनी रहेगी। नगर पालिका क्या मतलब आवाज तो आ रही है, लेफ्ट हो कर रहे हाँ नहीं निकलेगा ना, हाँ नहीं जाना चाहिए। विपिन भाई, एक बार रिजॉइन करें आप। अंजू ले ये बात कर जरा। किसी का माइक ऑन है बच्चों में से? प्लीज कीप योर माइक एट द म्यूट पोजीशन। मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स।
Let me just reconfirm. टीवी चल रही और तो बढ़िया है। There are many governing bodies in sports. जब तक विपिन सर 2 मिनट ट्राई कर रहे हैं उनसे कांटेक्ट करने की। My dear friends, there are certain governing bodies in the form of BCCI, CCI, FIFA, then FIH, ICC, IOC, SGFI, ये सब कॉमन नेम आपने सुन रखे हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी भी है, फेडरेशन ऑफ फुटबॉल भी है, ICC गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट, बट द बिगेस्ट एंड द बेस्ट is IOC, International Olympic Committee. करने वाले हैं। Then let me enlighten all of you. अलग-अलग देशों के अलग-अलग स्पोर्ट्स, हर देश का अपना राष्ट्रीय खेल होता है। इंडिया का जैसे हॉकी है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है, चाइना का टेबल टेनिस, जापान का जूडो है, स्पेन में बुल फाइटिंग को नेशनल स्पोर्ट्स मानते हैं, तो अमेरिका में बेसबॉल, और इंडोनेशिया का बैडमिंटन है। कई प्रकार के स्पोर्ट्स में से हर देश अपना अपना एक स्पोर्ट्स चुनता है, लेकिन कई खेलों का जन्म अलग अलग देशों में हुआ है। जैसे एथलेटिक्स जो है यूनान से आया है, तो चेस इंडिया से आया है, फुटबॉल चाइना से आया है, तो बास्केटबॉल यूएस से आया है, टेबल टेनिस इंग्लैंड से आया है, तो वॉलीबॉल फिर अमेरिका से। विपिन खाका सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, मैं सुन पा रहा हूं। आप कंटिन्यू करें सर, प्लीज कंटिन्यू करें। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है, बिल्कुल बोलिए। जी जी प्लीज बोलिए। जी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, माफी चाहता हूं मैं। तो मैं ये कह रहा था कि खेलने से आपके शरीर में स्फूर्ति आती है, आपका दिन पूरा अच्छा जाता है। सुबह सुबह एक्सरसाइज करने से आपको दिन भर ताजगी रहती है, चेहरे पर ताजगी बनी रहती है, शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, पूरा दिन अच्छा जाता है, तनाव नहीं रहता है आप लोगों को। तो खेलना इसलिए बहुत जरूरी है कि शरीर में स्फूर्ति बनी रहे, साथ ही हमारी मानसिक स्थिति भी सही रहे। ठीक है, इसके साथ ही अगर अभिभावक देख रहे हैं तो उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि बच्चों को खेलने से नहीं रोके, क्योंकि सरकार ने भी इस बात पर बहुत जोर दिया है कि बच्चे खेलें, ज्यादा से ज्यादा खेलें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। दूसरी चीज क्या फायदा होता है कि आप अगर दिन में एक बार भी एक्सरसाइज करते हैं, अभी तो आप घरों पर हैं, एक बार भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जितनी भी तनाव है, जितना भी आपके शरीर में स्फूर्ति नहीं रह गई है या थकान है, वो सारी चीजें दुरुस्त हो जाती हैं, उनसे आपको ताजगी आती है। एक लेख में मैंने ये पढ़ा था कि अगर एक व्यक्ति जो है दिन में 20 से 25 मिनट का अगर वॉकिंग कर लेता है तो उसको दिन भर ताजगी महसूस होती है, और खेल लेता है तो वो उसको और अधिक स्फूर्ति बनी रहती है। अभी इस समय पर आप घरों पर हैं अपने और बाहर नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी आपको छोटे छोटे व्यायाम, रस्सी कूद या हल्की जंपिंग, थोड़ा सा हाथ हिला के कहना चाहिए, घुमाकर पैरों से जंप करके, इस तरह की कुछ जो है गतिविधियां करनी चाहिए, जिससे आपका जो है कहना चाहिए आपके शरीर में ताजगी बने। और सारे बच्चों ने एक चीज और, सभी प्राय फिल्में देखते हैं सारे बच्चे, तो आपने नोटिस की होगी कि भाई हर बच्चा थोड़ा सा स्मार्ट दिखे, फिट दिखे। अक्षय कुमार को देखते होंगे आप लोग, और नया जो है आपका कहना चाहिए टाइगर श्रॉफ वगैरह, तो इन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग पर, अपने शरीर को एक सुदृढ़ बनाने के लिए, स्फूर्तिदायक, अच्छा दिखने के लिए इन्होंने काफी मेहनत की। तो काफी बच्चे इनको फॉलो करते होंगे, इनका अनुसरण करते होंगे कि मैं इनके जैसा दिखूं या इनके जैसा बनूं, इस तरह से। और एक चीज और है, हम लोग इसके अलावा खेलकूद तो शरीर को और मन को जो है कहना चाहिए स्ट्रेंथ देता ही है, लेकिन इसके साथ ही हम कई नई चीजें जो है सीखते हैं। वो नई चीजें ऐसी हो सकती हैं कि हम सोसाइटी में रहते हैं, टीम वर्क कैसे किया जाता है, हमें जब हम सोसाइटी में रहेंगे, टीम वर्क किसके साथ कैसे पेश आना है,
किसकी कितनी स्ट्रेंथ है, ये हमें सारी चीजें पता चलती हैं। मिलजुल के काम करने की काबिलियत आती है, लोग सीखते हैं, न सिर्फ जीतना सीखते हैं बल्कि हार के साथ अपने आप को एकोमोडेट कर पाते हैं, धैर्यवान बनते हैं, पेशेंस रखते हैं और सतत प्रयास करते हैं कि हम उस स्तर तक पहुंच सके। इसके अलावा जो है मैं और ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि जैसा ये सोचते हैं कि खेल में पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अभी प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले एक खेलो इंडिया करके एक इवेंट चालू किया है, शुरू किया है, प्रारंभ किया। उसमें उन्होंने कहा है खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। तो आप सभी को लाजवाब बनना है, थोड़ी सी फिटनेस बरकरार रखनी है आपको और उसके लिए, और उसमें कैरियर भी है। कैरियर कैसे हैं? आपने देखा होगा इवेंट मैनेजर्स होते हैं जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं पूरे खेल को। आईपीएल जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं तो आईपीएल एक टूर्नामेंट होता है क्रिकेट का, इसको कोई ना कोई तो ऑर्गेनाइज करता होगा, मैनेज करता होगा। तो आप एज ए इवेंट मैनेजर, एज ए स्पोर्ट्स मैनेजर आप इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं और बहुत अच्छा बना सकते हैं और काफी अच्छे जो है पर्क्स वगैरह और जो कहना चाहिए, अभिभावक सोचते हैं कि इसमें नहीं बनाया जा सकता करियर, लेकिन आप इस रास्ते को चुनकर एक बना सकते हैं। दूसरा होता है खिलाड़ी की फिटनेस। खिलाड़ी की जो फिटनेस होती है उस पर भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर फिटनेस नहीं होगी, हम जिस खिलाड़ी को फॉलो कर रहे हैं या उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उसकी फिटनेस नहीं होगी तो वो अपने इवेंट में अच्छा कहना चाहिए परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इसलिए एक खिलाड़ी को बनाने के लिए परफॉर्मर, एक उनका ट्रेनर भी होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट के रूप में भी आप कैरियर बना सकते हैं। कई बार खिलाड़ी जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो उनके मन में कुछ ऐसी भावना नकारात्मक आती है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसी बातें आती हैं। तो वो सारी चीजों को दूर करने के लिए साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है। देन उसके बाद है मार्केटिंग। आपने देखा होगा बहुत सारे सामान आ रहे हैं मार्केट में खेलने के, और उसमें उसकी गुणवत्ता और उनका प्रयोग, इस्तेमाल, उसका एडवर्टीजमेंट आदि के क्षेत्र में आप जो है अपना कैरियर बना सकते हैं और बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत शानदार कैरियर। और अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि सारे स्पोर्ट्स में एक बंदा होता है जो एंकरिंग करता है या उनकी पत्रकारिता करता है। तो आप स्पोर्ट्स की जो खेलकूद की पत्रकारिता है, जर्नलिज्म है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में भी एक अच्छा कैरियर के रूप में बना सकते हैं। और चाहें कि बहुत अच्छे आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप खेलकूद में तो जा ही सकते हैं। इसमें आपकी स्ट्रेंथ और आपकी मेहनत के अलावा जो आपकी विल पावर डिपेंड करती है कि आप कितने उसमें कितने समर्पित हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। इसके साथ ही एक जो है और अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एक खेल शिक्षक के रूप में शायद विपिन सर का संपर्क हमसे ओवर हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। अभी आवाज सुनती नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आज के मैन ऑफ द मैच कहूंगा तो के रूप में एमिनेंट गेस्ट के रूप में और आपने जो बोला धन्यवाद। मैं इससे पहले उनके बारे में बताना चाहूंगा। उमंग सक्सेना जी has become a very popular figure in Jhabua. Number 1. Number 2, he is a leading advocate. From a prime young age, he was a great sports person. Astounding achievements of national level cricket and great player of badminton. Secondly, he is a social human being, completely social whenever it comes to generosity, help, contributions.
He is a true gentleman who leads from the front and walks till the last. And then, when all these personality traits are conjoined together, that made him a true human being. Very humble, very cordial. एक छोटे से रिक्वेस्ट पर हमारे बीच में उमंग भाई मौजूद हैं। मैं उनका पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, सभी बच्चों की ओर से, टीचर्स की ओर से, प्रिंसिपल सर की ओर से और मेरे अपनी ओर से उनका अभिवादन भी करता हूं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं उमंग भाई से, काइंडली एड्रेस द गैदरिंग एंड काइंडली एनलाइटन ऑल ऑफ अस। उमंग भाई प्लीज। मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही है मनीष भाई, आ रही है मनीष भाई। प्लीज am I audible? आपका वीडियो कैमरा ऑन करें एंड यू आर ऑन द स्क्रीन। मेरी आवाज आ रही है मनीष भाई? बिल्कुल बिल्कुल, आप क्योंकि हम तैयार हैं सुनने के लिए आपको। अच्छा, थैंक यू एवरीवन। आप सभी खेल प्रेमियों को प्रणाम। आज खेल दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, मेरा सौभाग्य है। बद्री सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, बद्री सर ने बताया कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया है और मुझे बारे में कुछ बताया है। बल्कि ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैंने इस झाबुआ के सर्विसेज स्कूल को ज्वाइन किया है और सर्विसेज स्कूल में मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं आप सभी झाबुआ का सर्वश्रेष्ठ स्कूल का धन्यवाद अदा करता हूँ, ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक बच्चे की आवाज़ जरूर आई थी कि झाबुआ का सर्विसेज स्कूल है। निश्चित रूप से ये झाबुआ का सर्विसेज स्कूल है और झाबुआ में कई एक्टिविटीज़ हुई हैं वहाँ पर और कई बच्चे आगे निकले हैं। एक इंग्लिश में कहा जाता है माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये जीवन में आपको बहुत कारगर सिद्ध होती है कि हमें सोने से पहले बहुत आगे जाना है और ये जब भी संभव है जबकि मैं फिट रहता हूँ और मैं इसको नियमित रूप से व्यायाम वगैरह करता रहता हूँ तो निश्चित रूप से मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। एक और कहा जाता है कि वेल डन इज बेटर देन वेल सेड, कि निश्चित रूप से जो भी खिलाड़ी होता है मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? निश्चित रूप से ये कहा जाता है कि वेल डन इज बेटर देन वेल सेड। ये सभी खिलाड़ियों पर लागू होता है कि जो भी खिलाड़ी होता है वो बोलने के बजाय करने पर ज्यादा विश्वास करता है, अपने एफर्ट्स करता है और अपना पूरा स्किल और अपना पूरा 100% वो देता है। इस कारण से वो सक्सेस प्राप्त करता है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ बच्चों को, खासकर बच्चों को, कि ये कल का भविष्य है, आज के बच्चे कल का भविष्य है। तो वो भी मैं कुछ स्पोर्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स में जो एस शब्द है उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें स्पोर्ट्स में एस शब्द से आपको पहला एस अपन देखें तो आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आगे जाना है, ये करना है। आप मेहनत करते हैं, आप में स्ट्रेंथ आती है, आप में एनर्जी आती है। दूसरी चीज है कि दूसरा एस होता है स्टेमिना। आप में स्टेमिना डेवलप होता है, आप रनिंग करते हो, आपका स्टेमिना डेवलप होता है, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ती है और ये आपका जो स्टेमिना होता है वो आपके खेल जीवन में और दैनिक जीवन में बहुत कारगर सिद्ध होता है। आप कोई भी काम करते हैं तो इमीडिएट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और आप जीवन में कभी थकते नहीं हैं। थर्ड वन आता है स्किल। स्किल जो होती है आपकी अच्छी डेवलप होती है, आपको कोई भी बाधा नहीं आती है। अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, खेल खेलते हैं तो आपकी स्किल आपके दैनिक जीवन में बहुत काम करती है। आपके जीवन में जो भी कठिनाई आती है उन कठिनाइयों को आप बहुत स्किलफुल तरीके से आराम से उस स्किल से कोई भी कठिनाई को आप दूर कर सकते हैं। और एक और एस होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। हर खिलाड़ी में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, वो हार को भी उसी तरीके से लेता है जैसे वो जीत को लेता है। यदि वो हारता है तो वापस वो रीस्टार्ट करता है और ये सोचता है कि क्यों ना मैं आगे और प्रयास करूं और जीतूं। और एक ऐसे स्टेडीनेस, और स्टेडीनेस मींस आपको पेशेंस भी आता है इससे कि अगर आप स्टेडीनेस है आपके कार्य में, आप में धैर्य है, खेल में अगर आप में धैर्य है तो आप निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे और यही चीज आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम करती है। ये सभी क्वालिटी खेल में होती है और आखिरी में अगर ये सब चीजें आप में हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, स्किल है, स्टेमिना है और स्टेडीनेस है, तो आप निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिलती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सभी क्वालिटी जब खेल में है तो हमको निश्चित रूप से खेल खेलना चाहिए। एक और बात है कि जब आप खेल खेलते हो तो आपके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है। जैसा कि अभी कृति ने बहुत अच्छी स्पीच दी है कि ब्लड सर्कुलेशन होता है और आपके लंग्स मजबूत होते हैं। लंग्स मजबूत होते हैं तो आजकल के सिनारियों में हम देखें तो ये कोरोना वायरस की बीमारी चल रही है। आपने बहुत कम खिलाड़ियों को देखा होगा जिनको कोरोना वायरस हुआ है। ऐसे लोगों को कोरोना वायरस हुआ जो कम एक्सरसाइज करते हैं या सामान्यतया घर पे रहते हैं। कोरोना वायरस
बीमारी ऐसे लोगों को ही होती है। स्पोर्ट्समैन को कोरोना वायरस आपको बहुत कम देखने में मिला होगा। उसका कारण क्या है कि आप खेलते हैं तो आपके लंग्स मजबूत होते हैं, और लंग्स मजबूत होते हैं तो निश्चित रूप से आप कोरोना जैसी पेंडेमिक को आप हरा सकते हैं। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। उसके अलावा उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग होता है। आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, खेलते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम भी बढ़ता है। तो आपको एक और जानकारी ये है कि झाबुआ में खेल में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर हम देखें, हर खेल में देखें, क्रिकेट में झाबुआ के कई बच्चे ऑल इंडिया खेल चुके हैं, बैडमिंटन में कई बच्चे आगे बढ़ चुके हैं, कराटे में हम देखें तो झाबुआ की एक निधि त्रिपाठी लड़की है, उसने नेशनल अवार्ड विनर है, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट विनर है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में। इसके अलावा आरसी के कई बच्चे जो हैं वो भी नेशनल, आज मैंने जानकारी प्राप्त करी, करीब 26 बच्चे नेशनल गेम्स जिनमें जा चुके हैं, पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो झाबुआ में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो मेरा सभी बच्चों से ये निवेदन है और मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि आप भी खेलें और एक ही लक्ष्य रखें जीवन में कि जीत जीत और जीत, केवल यही लक्ष्य रखें आप जीवन में। और आप अपना जब भी कोई खेल खेलें तो आप अपना 100% दें। और मैं आपसे यही कहता हूं कि आप कभी जीवन में हताश न हो, कभी गिव अप न करें और आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को। धन्यवाद मनीष भाई। मनीष सर। Thank you very much, Umang bhai. Thank you very much for enlightening all of us. हेलो उमंग भाई, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ आ रही है मनीष भाई, आ रही है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है उमंग भाई? हाँ आवाज आ रही है भैया। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और बड़ा यूनिक अफेयर, आपने 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट कही। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन, और सबसे उससे बड़ी बात, किसी खिलाड़ी को अभी तक कोरोना का कोई साइन नहीं मिला। इसका मतलब है बहुत बड़ा रोल है स्पोर्ट्स का हमारी लाइफ में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस एंड एनलाइटनिंग ऑल ऑफ अस। कई अचीवमेंट आपके हैं और आप अभी भी इंस्पायर कर रहे हैं बच्चों को, और पूरे झाबुआ की तरफ से, पूरे विद्यालय की तरफ से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। नाउ मैं आई रिक्वेस्ट, उमंग भाई ने बहुत समय दिया और थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, एक नए तरीके का एक मॉडलिंग आज हमारे सामने है, तो कुछ डिस्टर्बेंस से मैं माफी चाहूंगा। लेकिन अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑनरेबल प्रिंसिपल सर से, चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज सेरेमनी, टू काइंडली डिक्लेयर द मीट ओपन एंड आल्सो टू काइंडली एनलाइटन अस। ऑनरेबल प्रिंसिपल सर प्लीज। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री उमंग सक्सेना जी, विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं एवं प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज के दिन हम श्री उमंग सक्सेना जी को हमारे विद्यालय का चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पर देखकर, उनकी यहाँ उपस्थिति को महसूस करके बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सर आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। नहीं सर, माइक बंद किया है कोई सर का। अच्छा, हेलो मनीष सर। हाँ, हेलो, यस सर। तो मैं उमंग सक्सेना जी के बारे में, प्रिंसिपल सर, आप लोगों ने एक रोटरी क्लब में साथ में काम किया है, सर का अध्यक्ष के रूप में हमने कार्यकाल देखा। सर ने बहुत ही शानदार तरीके से झाबुआ में विभिन्न क्षेत्रों में समाज के भले के लिए काफी कुछ काम किया। उसके बाद एक सदस्य के रूप में भी, एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भी सर ने काफी अच्छा काम किया है। और आज सर की एक नई पर्सनालिटी की एक डायमेंशन में मेरा परिचय हुआ कि सर एक बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं। तो जब मनीष जी ने मुझे बताया तो मैंने कहा भाई उमंग सक्सेना जी से अच्छा आज के दिन चीफ गेस्ट कोई हो नहीं सकता। और वो कहावत है कि सर स्वयं एक खिलाड़ी रहे हैं, तो सर ज्यादा अच्छी तरह से बच्चों को, हम सभी को बता सकते हैं कि खेल का जीवन में क्या फायदा होता है। अगर वो बात कोई दूसरा व्यक्ति कहे, चाहे वो कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, अगर वो खिलाड़ी नहीं है
और उससे अगर कहा जाए कि आप खेलों पर कुछ बच्चों को या एक समूह को आप संबोधित करें, मोटिवेट करें, तो चाहे उसका भाषण कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो उस व्यक्ति से अच्छा नहीं हो सकता जो जिसने उस फील्ड में काम किया है। तो सर ने, उमंग जी ने जो यहाँ पर हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए बच्चों को पूरे कार्यक्रम में को संबोधित किया, निश्चित रूप से वो काफी महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक आज जो खेल के महत्व की बात है, निश्चित रूप से खेल हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। मैं वैसे साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, मुझे ज्यादा खेलने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन जब भी मिलता था मैं खेल को जरूर खेलता था। मैंने शौक के तौर पर ही खेल खेला और उसके भी मैंने काफी कुछ फायदे महसूस किए। जैसा कि मैं बच्चों को स्कूल में ही बताता रहता हूँ, आप चाहे किसी कंपटीशन को आप ना जीते हैं, कहीं आप पोजीशन नहीं भी आती, तो एक फायदे की आपको गारंटी है कि आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और जैसा सर ने खुद बताया, खेल खेलने मात्र से ही आप में बहुत सारे गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गुण है इम्यूनिटी अच्छी होना। जैसा सर ने बताया कि कोरोना हमें ये तो नहीं कह सकता कि किसी खिलाड़ी को कभी कोरोना हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि इम्यूनिटी की वजह से। क्योंकि जनरली कोरोना व्यक्ति में प्रवेश जल्दी करता है जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, लेकिन कभी और भी फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन मेरा खुद का सोचना है, अगर कोरोना किसी खिलाड़ी के अंदर प्रवेश करता है तो वो जरूर कोरोना पछताता होगा कि मैं कहाँ फंस गया आकर के, और जल्दी से जल्दी वो निकलने के लिए बेचैन होता है। इसलिए मुझे लगता नहीं कि इंडिया में किसी भी खिलाड़ी की इससे कोई डेथ हुई हो सकता है कोरोना हो सकता है, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो बहुत सारे फायदे हैं। और इस समय जो कोरोना की वजह से देखिए हमारे स्कूल बंद हैं, बच्चे घरों में रह रहे हैं, स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, बाहर उनका मूवमेंट बहुत कम हो रहा है। तो इस समय और ज्यादा जरूरी है कि हम मतलब कुछ फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में कुछ हम खेल को अपनाएं। जैसा कि इस समय आउटडोर खेल खेलना भी मुश्किल हो रहा है, तो मैं सभी बच्चों से निवेदन करना चाहता हूँ कि बच्चे अपने घर पर ही कुछ नहीं तो कुछ आप योग करें, एक्सरसाइज करें। हमारे विद्यालय से जो हमारे जो बद्री प्रसाद जी हैं, वो स्वयं योग की क्लासेस लेते हैं, वीक में उनकी 2 क्लास जरूर होती हैं। तो बच्चे घर पर ही योग एक्सरसाइज करें और इसके जो फायदे हैं आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। और जैसा कि हमारा जब भी स्कूल खुलेगा तो हम चाहेंगे कि उमंग सक्सेना जी को हम पुनः एक बार बुलाएं और सामने रूबरू बच्चों से रूबरू कराएं। और क्योंकि सर की जो है काफी एक्टिव हैं, सर की और भी फील्ड में सर ने काम किया है, तो हम चाहेंगे कि उसका लाभ हमारे बच्चों को भी मिले। तो मैं पुनः सभी बच्चों को, उमंग सक्सेना जी को, सभी टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इसको सफल बनाया। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। पुअर कनेक्शन सभी इसमें चल ही रहे हैं, लेकिन सर ने इम्पोर्टेंट बात 2-3 जो कि इम्यूनिटी की बात सबसे इम्पोर्टेंट, और मैं सभी बच्चों को बताना चाहूँगा, हम टीचर्स जनरली मॉर्निंग में देखते हैं, सर इज ए विगरस रनर, अर्ली इन द मॉर्निंग ही गेट्स अप एंड ही रीड्स फ्रॉम द फ्रंट। इम्यूनिटी के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं सर, बहुत एक्सरसाइजिंग पर्सनालिटी हमारे यहाँ, और इम्यूनिटी के साथ विल पावर, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, और इसी की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग द होल गाला गैदरिंग। नाउ मे आई रिक्वेस्ट Shri Vijay Kumar Sethi sir to kindly propose the vote of thanks. Vijay Kumar Sethi sir is our senior most teacher, EGT chemistry. Sethi sir, please. Thank you Manish sir. Respected Shri Umang Saxena जी, आज के मुख्य अतिथि और झाबुआ के एक प्रतिष्ठित हस्ती हमारे बीच में है। प्रिंसिपल श्री जेपी बोरे, केंद्रीय विद्यालय गेल झाबुआ, मेरे सभी शिक्षक साथीगण, पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स, सभी को प्रातःकालीन नमस्कार, सुप्रभात और आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय खेल दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारा आज का सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में एक झाबुआ की महान हस्ती श्री उमंग सक्सेना जी बीच में है, नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं। और सर ने, सभी जानते हैं स्पोर्ट्स का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर एस का क्या महत्व है, सर ने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया है। एस फॉर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एस फॉर स्ट्रेंथ, एस फॉर स्टेमिना, एस फॉर स्किल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने ये भी बताया कि झाबुआ जो है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। कुछ नाम आपने बताए, जानकर खुशी हुई कि झाबुआ के भी कुछ सितारे हैं जो स्पोर्ट्स के आसमान के अंदर चमक रहे हैं।
मैं आपका पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आज का कार्यक्रम ये हमारे गेल झाबुआ का एक पहला ऑनलाइन जो है, जिसके अंदर इतने सारे बच्चों ने, पेरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। डेफिनेटली किसी की गाइडेंस और सपोर्ट के बिना ये नहीं हो सकता, और वो है हमारे प्रिंसिपल सर। तो प्रिंसिपल सर का गाइडेंस और सपोर्ट के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के हमारे कार्यक्रम के हीरो हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर श्री बद्री प्रसाद सर, उनका बहुत बहुत आभार। सर ने बहुत ही स्पोर्ट्स डे के महत्व के बारे में जो है बहुत ब्रीफ के अंदर हमें बताया, ध्यानचंद जी के बारे में बताया। और इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें टेक्निकल पर्सन की जरूरत पड़ती है, और इसके लिए हमारे दीपक भिंडे सर का बहुत बहुत आभार। उन्होंने एक स्काइप का जो लिंक बना के दिया और हमें जो है टेक्निकल सपोर्ट प्रदान किया। हमारी 10th क्लास की छात्रा कृति त्रिवेदी ने मेजर ध्यानचंद जी की जीवनी के ऊपर कुछ बताया, स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। एग्जाम चलते हुए भी उसने जो है टाइम निकाल करके जो कुछ तैयारी करी है। कृति, थैंक यू वेरी मच। और विपिन सर ने, हमारे जो लाइब्रेरी सर है, एक आपने देखा होगा जब प्रोग्राम शुरू हुआ, हर बच्चे के व्हाट्सएप ग्रुप में एक पोस्टर जो है सर ने अपलोड किया है, और बहुत ही अच्छा आकर्षक पोस्टर सर ने बनाया है। और सर ने हमारे दैनिक जीवन में खेलों का क्या महत्व है और हम अपने खेल के अंदर कैसे कैरियर बना सकते हैं, सर ने इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। विपिन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर श्री मनीष त्रिवेदी सर, बहुत अच्छे तरीके से सर, यही नहीं सर, कोई भी प्रोग्राम हो बहुत अच्छे तरीके से सर ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सर। और इस पूरे प्रोग्राम को जब हम पेपर के अंदर पब्लिश करेंगे तो ये जिम्मेदारी यदुनंदन सर की दी गई है, मैं उनको एडवांस में जो है थैंक यू कहता हूँ। और ये प्रोग्राम अभी यही खत्म नहीं हो जाएगा, इस लाइव इंटरेक्शन के बाद भी हमारे पास एक क्विज कंपटीशन है, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन है। तो बद्री सर का उस क्विज कंपटीशन को तैयार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पोस्टर कंपटीशन के लिए हमारे जो आर्ट टीचर है अंतर सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी टीचर्स का जिन्होंने बच्चों को, पेरेंट्स को मोटिवेट किया इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, उन सभी टीचर्स का, मेरे सभी शिक्षक साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और पेरेंट्स का जिन्होंने समय निकाला इस प्रोग्राम को जो है शोभा बढ़ाई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टूडेंट्स, आपके लिए तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अभी भी कई बच्चे ऐसे होंगे जो शायद स्पोर्ट्स के बारे में जो नहीं जानते होंगे या उसमें कुछ एक्टिविटी नहीं करते होंगे। अभी प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए आपको समझ जाना चाहिए कि स्पोर्ट्स का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, तो आपने ये प्रोग्राम अटेंड किया, अपना समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। और लास्ट में उन सभी साथियों का जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आज के कार्यक्रम को सक्सेस बनाने में योगदान दिया, उनका तहे दिल से स्कूल की तरफ से, स्कूल के प्राचार्य की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद। मनीष सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सेठी सर, आपने सभी का धन्यवाद दिया। एक और ऐड कर दूं उसमें, परमपिता परमेश्वर का भी धन्यवाद कि किसी न किसी प्रकार से नेटवर्क इशू होते हुए भी हमारा प्रोग्राम वास्तव में सक्सेसफुल। और थैंक एक्चुअली पुअर कनेक्शन का मैं भी एक विक्टिम यहाँ पर हूँ, मेरी आवाज शायद सब तक पहुँच रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्पोर्ट्स का फुल फॉर्म जैसे उमंग भाई ने स्टार्ट किया, SPORTS। S stands for stamina, skill, strength. P stands for positive attitude. O stands for omnipotent, omniscient, omnipresent. R means refreshing, relieving, and revitalizing. T means talent. And last S means if we combine all the qualities, last S leads to success. It was all successful effort. आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। ऑनरेबल प्रिंसिपल सर ने इस प्रोग्राम को लीड किया, चॉक आउट किया। बद्री प्रसाद सर इज द रियल हीरो बिहाइंड ऑल ऑफ अस, क्योंकि पूरा मेहनत क्विज जो भी आपका होने वाला है, सभी शिक्षक साथियों को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। 4 क्विज क्वेश्चंस के पेपर बद्री सर ने बनाए हैं। फर्स्ट लिंक जो है वो 6 to 8 की होगी। क्वेश्चन पेपर नंबर 1 6 to 8, क्वेश्चन पेपर नंबर 2 9th and 10th, क्वेश्चन पेपर नंबर 3 सिर्फ 11th के लिए, 11th A and B, और क्वेश्चन पेपर नंबर 4 12th A और B। सभी शिक्षक साथी ध्यान दें, 1 2 3 4 4 अपने अपने क्लास का आप पेपर उसी की लिंक भेजें, ध्यान रखें। एक बार आप रिपीट कर रहा हूं मैं। फर्स्ट पेपर फॉर 6 to 8, सेकेंड पेपर फॉर 9th and 10th, थर्ड पेपर फॉर ओनली 11th क्लास, फोर्थ पेपर फॉर ओनली 12th क्लास। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद,
let us wind up. Very special thanks once again to Shri Umang Saxena ji. बद्री Thank you. सर कुछ कहना चाहते हैं? बद्री सर Yes, sir. बोलिए। हाँ सर। मनीष हाँ बोलिए बद्री। ये जो बोलिए। हाँ सर, एक क्यूज जो है वो प्राइमरी के लिए ऑलरेडी भेज दिया है, वो क्लास टीचर को मिल गया है, बच्चों तक पहुंच गया है। क्लास प्राइमरी का अलग है। ओके। उनका Thank you very much. मॉर्निंग में दे दिया था क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं। और ये सर क्यूज आज ही खत्म होना है, आज ही इसका जो है रिस्पॉन्स बंद हो जाएगा शाम को 5 बजे तक। थैंक यू मनीष सर। ओके। थैंक यू मनीष भाई। हाँ उमंग भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत समय लिया आज आपका उमंग भाई। थैंक यू वेरी मच। ठीक, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।